In the first week of November, Team Invincible set out to climb Duke's Nose at Lonavala. It was our 13th expedition and the energy level was like never before. Duke's Nose is a towering pinnacle near Khandala. The summit point measures around 2700 feet from the sea level. Climbing here is a dream of many adventure lovers. We started preparation with selecting equipments and ropes. Standard gears make the team stronger, and we had that. Early in the morning, we loaded our vehicles and set off for this much awaited adventure. Katu, lock call. After a day-long travel, we reached Lonavala in the evening. We wandered around to refresh ourselves and collected required items for our night camping. Suddenly after sunset, the weather changed its mood and the dark clouds started thundering. Gradually drizzling turned into heavy rain. The excitement of climbing got washed out and now it was impossible to climb the wet rock. Around 8 in the evening, it stopped raining and we decided to occupy the base. Okay. હવે બધા ઇક્વિપમેન્ટ જેટલા અહીંયા આપણી પાસે છે આપણે ઉપર લઈ જવાના છે. ગાડીની અંદર કોઈ સામાન છોડવાનો નથી, બધો સામાન આપણે ઉપર લઈ જવાનો. ઓકે, ઇક્વિપમેન્ટ માટે બે ટાસ્ક. કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં વરસાદ આવે, ઇક્વિપમેન્ટ ભીંજાવાના છે. ઇક્વિપમેન્ટમાં આપણી પાસે કેમેરા પણ છે, આપણી પાસે ઘણી બધી વસ્તુ છે, બરાબર. બાકીના ઇક્વિપમેન્ટ છે તમારા 3 જણા છે ને વેચી દેવાની તમારી ટીમમાં. અત્યારે પાણી પીવા માટે આપણી પાસે નથી. તારે અહીંયા જઈને પૂછી લેવાનું પીવાનું પાણી ક્યાંથી ભરવાનું. બધાએ પોતપોતાની બોટલ પાણી પી લેવાનું અને બોટલ ભરી લેવાનું. આપણે અહીંયાથી જશું, આપણું જે પીક છે એની ઉપર જશું, બરાબર. શૂઝ પહેરજો તો વધારે સારું રહેશે, કારણ કે આ રૂટ ઉપર મતલબ થોડો સાપનો થોડો ડર રહેશે, બરાબર. ડન. We made teams and took responsibilities. That is the Invincible style to deal with the adversity. મારી ટોર્ચ જે જગ્યાએ પડે કે ચમકતું દેખાય તમને સામે જાડીમાં જોયું? દેખાય છે? બે છે વધારે લાઈટો કરો, વધારે ટોર્ચ કરો, બધા વધારે લાઈટો કરો, બધા ટોર્ચ કરો, બધા ટોર્ચ કરો, બરાબર. કોઈ છે ત્યાંથી આગુ પાછું નહીં જાય, સમજ પડી? વાસણ કોની પાસે? વાસણ પકડો. બસ બસ જો ભાઈ જોયું? જો પાછળ જાય દેખાય છે? હા દેખાય. દેખાય? ઋષિ મોટું છે. બોલો શું કરવું? જવું છે પાછું વળવું છે? જઈશું. 17 ભેગા રહીશું, સારું રહેશે. ये देखो यहाँ तक आ गया है ना, इसके पीछे आ गया ये देखो मूव हो रहा है, देखा? हाँ. लाइट करो, टॉर्च करो, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो. लाओ विसल दो, किसके पास है? दो. पटाखा किधर है? जलाओ. फटाकड़ा काढो. लाओ पटाखा मेरे हाथ में दो. એ બી નથી મૂવ થયું ના, પણ એની આગળ સાઈઝ મોટી છે.
हाँ सर बहुत स्लो मूवमेंट है અને હાઈટ બહુ મોટી છે. अरे भाई भालू का मूवमेंट इसी तरह से होता है। अभी जिस तरह से ये मुंह हिला रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही हिलाता है मुंह। आवाज करो ओए। हे बस बस, पूरे समय देख रहा है अपन को इसे ट्रायंगल जिस फेस तरह से चल रही है ऐसे ये गाय है। अरे यार तो भैंस है, ये घोड़ा है। घोड़ा घोड़ा है, ये घोड़ा है। भैंस ये क्या है? लेकिन ये क्या है? ભેંસ છે बड़ी भैंस આ ભેંસ છે फिर भी देखते हुए चलो જેલ લીકે ફટાકડાનો અવાજ કર્યો. ગુડ ના એક્સપિરિયન્સ. ભાઈ કે એ રીતે આ જોતા રહેજો ભાઈ, સાઈડમાં લાઈટ તો મારતા જ રહેજો। સાઈડમાં લાઈટ મારતા રહેજો ભાઈ। ये भैंसो फ्री फरती हो એટલે બીજી ચિંતા नहीं। सो अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ आंखें हमें दिख रही थी। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, बहुत दूरी से ये जो आंखें दिख रही थी तो कुछ हमें पता नहीं चल रहा था। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली। फाइनली हमने जाके चेक किया तो ये लग रहा है कि ये गाय या भैंस है। तो फिर अभी उसने टर्न लेके अपना रास्ता बदल दिया है, वो ऊपर की साइड जा रही है और चलने के हिसाब से लग रहा है कि ये भैंस है। वैसे ही एक लाइट ऊपर से दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर से एक ही लाइट दिख रही है। अब इधर जो दिख रही थी वो दो दिख रही थी, ऊपर एक ही दिख रही है। तो चलो अब आगे चलते हैं। પॉइंट पर मारो। प्लास्टिक को पीछे दे पानी ना प्लास्टिक है ना पानी તમે એટલું હાથી નહીં પાડતા। રોકા રોકા હું મારું કોણ જઈને છે ને બાદ નહીં તો લાવો પથ્થર મારા। પ્લાસ્ટિક है पानी के साथ कोई जीव नहीं है, प्लास्टिक है। हाँ पानी की बोतल છે સાહેબ દેખાય છે અહીંયાથી। ओके चलो। હાલો तो खास तौर से जहाँ जहाँ पर नाइट कैंपिंग या नाइट ट्रैकिंग होता है, हर उस जगह पर इस टाइप की ये बेल लगी है। और दूर से मतलब आपको एक रिफ्लेक्ट करती है, आपको पता चलता है। चलो भाई लिसन एवरीवन, हेलो सुन रहे सारे लोग? सर अब यहाँ पर आप जब चलते हैं तो इधर लेफ्ट राइट में जो भी मतलब झाड़ियाँ हैं, बशेश हैं, उसको टच करते हुए नहीं चलना है। समझ में आया आपको? अरे समझ में आया? यहाँ पर एक वाइपर मिलता है जिसको बोलते हैं बाम्बू पिट वाइपर। एकदम पतला सा वाइपर होता है और एकदम ग्रीन कलर का होता है, एकदम कैमोफ्लाज हो जाता है। समझ में आया? जब मैं पहली बार, मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, जब मैं पहली बार आया था तो हम लोग 3 मिले थे। हम रात को क्लाइम करके वापस आ रहे थे तो हमें 3 टोटल वाइपर मिले थे। पहला वाइपर मिला तो हमने रास्ता चेंज कर दिया, दूसरे रास्ते पे 2 मिले। तो लोग भी यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे वाइपर्स हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी जो लोग चल रहे हैं मेरे पीछे 2, 2 के पीछे 4, वैसे मत चलो। 2 की लाइन में पूरी सारे लोग 2 की लाइन में चलो और बातें करना। It was already slippery and risky to trek during rainy night. There were many things to look after, like probability of snakes, wild animals, and the wet surface, and a chance of getting lost. One needs to be alert and careful on every step when you are out in the forest during the night. This is how you survive. ओके, सब ठीक? ओके, अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ से। ये वही गांव जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क पड़ी है, जहाँ पर हम मंदिर में बैठे थे और जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हुआ, पुरवंडे, ठीक है? और मेरे एग्जैक्ट पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। सारी जगह पे कहीं ना कहीं आपको लाइट दिख रही होगी, लेकिन मेरे पीछे वाली जो साइड है वो एकदम ब्लैंक है। समझ में आ रहा है? दैट इज़ इंडियन नेवी। आपकी काफ़ी लोगों की जो हेड टॉर्च होगी उसमें एक मोड होगा ब्लिंक का, तो ब्लिंक मोड उधर रह गया और आपने शुरू रखा, फिर भी वो कुछ और मैसेज समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप ये चीज़? तो ये नहीं होना चाहिए। डन? अभी 3 प्लाटून है। 3 प्लाटून के लीडर को मैंने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी है। जैसे कि राजू भाई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने दी है, अभी फूड कुछ खाना पकाने के लिए, इनको टेंट में सामान डालने के लिए, इनको टेंट पिचिंग के लिए। तो आपको अभी बैठे नहीं रहना है, थोड़ा जल्दी से आप करोगे तो जल्दी से हम खाना पका सकते हैं और जल्दी से सो सकते हैं। डन? यस सर। सेकेंडरी थिंग, ये जो यहाँ पीछे की साइड जो मंदिर है, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। और आप जिस जगह पे खड़े हैं उसकी चारों ओर जो हाइट है वो 1800 फीट है।
कितनी है? 1800 फीट का सीधा पहाड़ी, सीधी चट्टान है। शायद ये सी लेवल से हाइट इसकी 2700 फीट तक है। तो ये पूरी खड़ी चट्टान है, तो रात को कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाना है। समझ में आया? ये पीछे की साइड यहाँ से देखो, ये 10 फीट यहाँ जहाँ पर ये जेबी खड़ा है, कल सुबह ये यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा। समझ में आया? अभी अंधेरा है इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कहाँ पर हैं। किसी को रात को उठ के चलने की आदत वगैरह तो नहीं? अगर है तो मेरे टेंट पे सोना, ठीक है? पैर बांधूंगा मेरे पैर के साथ। डन? कोई डाउट है और आपको? ठीक, इक्विपमेंट ठीक से रख देना। शायद बारिश आ गई, इक्विपमेंट गीले हो गए तो हमारा कल का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लेन है, प्लेटो टाइप का है, वहाँ पर आप सारे टेंट्स डाल सकते हैं। टेंट डालने के बाद ये जल्दी से सामान अंदर डाल देना ताकि टेंट टूट ना जाए। टेंट यहाँ से जाएगा तो वापस नहीं आएगा। डन? चल काम शुरू करो। We had to cook it again because the khichdi was very delicious. After struggling with the rain and heavy wind for the whole night, the sunrise was marvelous. We really enjoyed those moments. After observing the area, we decided to rappel down instead of climbing those wet patches. બેઝ ટુ રવિ ઓવર. તાર નીચે આવવાનું કે નહીં આવવાનું? Though weather did not allow us to climb, we enjoyed the trip as never before. Feeling the thrill of adventure in its purest form will never last from our minds. Being invincible matters a lot, and the majestic Dukes know that we are the Invincibles. Jai Hind.